الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم، آپ صبح سے سید الشہداء کے لیے گریہ کر رہے ہوں، شاید آپ کے آنسو بھی خشک ہو گئے ہوں گے، لیکن مجھے بس دو چار روایتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں. کچھ ایسے بچوں کے بارے میں، کچھ ایسی بیویوں کے بارے میں جو مٹی کے فرش پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سروں پر نہ چادریں رہی ہیں نہ خیمے رہے ہیں. یہ رات بچوں اور عورتوں کی رات ہے، یہ مظلوموں کی رات ہے. امام حسن مصطفیٰ کا ایک مظلوم بچہ سید الشہداء کے ساتھ بھی مارا گیا. تو جملے اس کے لیے کہہ دو، جب سید الشہداء قربان ہونے والے تھے، شبر ان کے سامنے کھڑا تھا تو ایک بچہ خیمے سے بھاگتا ہوا آیا. امام حسن مصطفیٰ کا بچہ تھا، سید الشہداء کے سامنے آیا اور شبر سے کہنے لگا، اے لعین تو میرے چچا کو مارنا چاہتا ہے. شبر لعین نے سید الشہداء پہ جو وار کیا، اس بچے نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، دونوں باتوں کو نہیں سکڑ گئے، سید الشہداء کے اوپر گرے. بچے نے کٹے میں ہاتھ امام حسین کو دکھائے، امو دیکھیں اس نے میرے ہاتھوں کے ساتھ کیا کر دیا. اس نے دوسری شمشیر ماری. عبداللہ بن حسن کا بیٹا کٹ کر سید الشہداء پہ گر گیا. یہ بچوں کی قربانی یہاں سے شروع ہو گئی اور کربلا کا ایک اور منظر شروع ہو گیا. اس کو ہم شام غریبہ تعبیر کرتے ہیں. شام غریبہ شروع ہو گئی. بس چند روایتوں کی زحمت ہے. مجھے پتا ہے آپ روتے روتے تھک گئے ہوں گے، لیکن مجھے اور آپ کو مل کر ایک بی بی کو پرسا دینا ہے جو بیچاری رونے لگتی تھی تو ایک تازیہ نہ کھاتی تھی ہمیشہ. چند جملے بولوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. نہ مجھ میں ہمت ہے نہ آپ میں ہمت ہے. اب تو بس ماتم کرنے کا دل چاہ رہا ہے. بس ایک موقع آیا، بی بی طلحہ زینبیہ سے سید سجاد کے پاس آئی اور کہا، سجاد تمہارے بابا مشکل میں ہیں، اپنے بابا کی خبر کرو. سجاد ایک لاٹھی ٹیک کر خیمے سے باہر آئے. عجیب منظر دیکھا جو خدا کسی بچے کو نہ دکھائے، کسی بیٹے کو نہ دکھائے. نو کے نیزہ پر باپ کا سر ہے. فرمایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ کے سر کو پہلا سلام زین العابدین نے کیا. اب بس شام غریبہ شروع ہو گئی. اب مختلف حادثات ہونا شروع ہو گئے. بس ایک منظر عرض کروں، ہنسی تو میں کوشش کرتا
हूँ कभी कभी मसाइल पढ़ते वक्त इनके दिलों की कैफियतों को समझने की हम और आप कोशिश करें। मैंने कल भी अर्ज किया था, ये पहाड़ के गम हमारे दिलों के लिए नहीं है। हम लोग तो मर जाएंगे अगर एक तजल्ली भी आ गई, लेकिन जब मैं अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम के दर्द आमेज जुमलों पर गौर करता हूँ तो सोचता हूँ देखो यहाँ कितनी तकलीफ नजर आ रही है। बस उसमें से एक जुमला अर्ज करूंगा जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए है। वो कौन सा वक्त था जब सारे लाशें ज़मीन करबला के ऊपर रखे थे। शिमर ने कहा लाशें पामाल होंगे, उमर साहब ने कहा हाँ पामाल होंगे। घोड़ों की नालबंदियां होना शुरू हो गई। एक कबीला आया, एक कबीला बजली आया, कहा ये बजली हमारे कबीले का है, इसका लाशा पामाल नहीं होगा। असदी कबीला आया, ये हमारा बंदा है, इसका लाशा पामाल नहीं होगा। रियाही कबीला आया, ये हमारा बंदा है। हबशी भी आ गए, जौन का लाशा भी चला गया। अब बीबी ज़ैनब ने अजीब मंजर देखा, बस हुसैन का लाशा करबला की मिट्टी में आ गया। बड़े तड़प कर कहा अरे भैया सबका कोई वारिस है, मेरे मौलाना तेरा कोई वारिस नहीं है। मैं कहूँगा बीवी जिसका कोई वारिस नहीं था ना, आज पूरी कायनात या हुसैन कर रही है। जिसका कोई वारिस नहीं था, जो बेखुद खुद बेगोरो कफन था, आज सब उसके कफन के लिए तड़प रहे हैं। अरे काश करबला का कफन मिल जाए। खुद बेगोरो कफन था ना, उसका कफन कीमती हो गया। खुद भूखा प्यासा था, सबको प्यास दे गया, सबको खाना दे गया। अब हुसैन के बच्चों की बारी आई। एक एक बच्चे पर जुल्म होना शुरू हुआ, सकीना पे जुल्म हुआ, तमाचे भी लगे, गोशवारे भी छिरे। आपको बच्ची याद है मुस्लिम ने नकील की, जिसको सैयद शाहदा ने अपने जानों पर बिठाया था। अरे आतिका मुस्लिम ने नकील की बच्ची भी मारी गई। 2 बच्चे घोड़े के टापों से मरे, 2 बच्चे खौफ से मरे। बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम बच्चों की लाशें जमा करती फिर रही है। अरे कोई है जो मजलूमों की मदद करे, लाशें जमा करना है। जब मामला आ गया, अब खेमों के जलने का भी तज़किरा करो, मेरे अंदर ताकत नहीं है। बस एक जुमला बोलूंगा, बस एक जुमला, बस एक वक्त आया, ये अशकिया जो अंदर घुसे, बीबियां एक दूसरे के पीछे छुपती थी। अरे कोई पनाह मिल जाए, अरे कोई पनाह मिल जाए, कोई पनाह न मिल रही। बस एक मौका आया, बीबी फातिमा कुबरा ने कहा अम्मू है बूबी जान क्या एक चादर मिलेगी। बीबी ज़ैनब ने अजीब जुमला कहा, कुछ ना कहा, बस इतना कहा अम्मू का मिसलोग है फातिमा, तेरी बूबी भी तेरी तरह, एक चादर का सवाल। सबके सामने एक चादर का सवाल है। बस शाम गरीबा पूरी हो गई। अजीजों मुझे बस एक रिवायत और अर्ज करनी है, आपकी ज़हमत तमाम। आप अपने 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 घरों को चले जाएंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे। हम लोग आज की रात सुकून से सो जाएंगे, लेकिन बस जरा सोचिएगा ज़ैनब बेचारी पहरा दे रही होंगी, सारे दिन की भूखी प्यासी पहरा दे रही होंगी। रिवायत के मुताबिक खाना भी दिया नहीं, इन्होंने खाना दिया तो रिवायत के मुताबिक हुर की बेवा खाना लेकर आई, हुर की बेवा खाना लेकर आई। अब यह हुर की बेवा या ज़ुहैर की बेवा नहीं मालूम कौन खाना लेकर आई। बीबी ने खाना देखा, सकीना ने खाना देखा, अब मुझे नहीं मालूम। अजीजों अगर हमारे और आपके घर में हो कभी कोई मुश्किल आती है तो इंसान कहता है सबसे पहले बच्चों को दे दो, मुझे नहीं मालूम। सकीना कह रही होगी अरे पानी आ गया तो अली असगर को पिलाओ, सबसे छोटा तो वो है, अब कौन बताए। अली असगर तो कब्र में लेटे हुए हैं, अरे कौन बचा यहाँ पर, किसको पानी पिलाए। बस एक मौका आया, बीबी सकीना नहीं मिल रही थी, बीबी सकीना नहीं मिल रही। कुछ ने कहा शाम गरीबा की रिवायत है, कुछ ने कहा 11 मुहर्रम की रिवायत है।
बीबी सकीना नहीं मिल रही। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मक़तल की तरफ गामज़न हुई। कुछ ने कहा 11 की रिवायत है, लेकिन कहा मक़तल की तरफ गामज़न हुई। अब जरा दिल थाम कर सोचना अजीजों, मैं तुमसे पूछूंगा, बल्कि अपनी बहनों से पूछूंगा, खुदा ना करे कभी किसी बहन को अपने भाई का लाशा देखना पड़े। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन बस दिल पे हाथ रख के पूछना, किसी बहन को 18 भाइयों के लाशों से गुजरना पड़े और हर लाशा पे गोरकबर, हर लाशा कटा हुआ, हर लाशा छिदा हुआ, हर लाशा पामाल हुआ। अजब मंजर था। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मसाइब है, मसाइब की दुनिया की मलिका है। मसाइब को झेलती हुई गुजर गई। भाई के लाशे पर देखा, बीबी सकीना एक लाशे के ऊपर सर झुकाए बैठी है, गोया लाशे के सीने पे सर रखी हुई है। नजदीक आई और सकीना से कहा, बच्ची सकीना अब उठो। कहा ये मेरे बाबा का लाशा है। कहा तुमने कैसे पहचाना? इस पे तो ना सर है ना कोई और निशानी है। कहा भूपी मैं यहाँ से गुजर रही थी, लाश में से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, अरे मेरी बच्ची तुम मेरे पास आ जा, मैं तेरा बाप यहाँ हूँ। बीबी ज़ैनब ने लाशे की बराबर की मिट्टी उठाई, हाथों में बुलंद की, मदीने का रुख किया और कहा या रसूल अल्लाह, हाज़ा हुसैन, ये आपका हुसैन, इसका लाशा करबला में, इसका सर नेज़ों के ऊपर। मातबे हुसैन, मातबे हुसैन।